आसनसोल देख रहे हैं आप, स्पॉन्सर्ड बाय फर्नीचर वर्ल्ड। ताइबा कलेक्शन, ताइबा, तंदूर वाले, एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट और डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन। आइए बढ़ेंगे खबरों की तरफ। आखिरकार 3.5 महीनों के बाद कॉर्पोरेशन के MIC का हुआ ऐलान। जी हाँ, आप चौंकिए नहीं, बल्कि आपने तो सही सुना है कि तंजिया अंदाज में ही सही, पर आज बीजेपी की तरफ से काउंसलर चैताली तिवारी ने डिप्टी मेयर और MIC के नाम की घोषणा कर दी है, जिसमें उन्होंने डिप्टी मेयर की हैसियत से उज्जवल चैटर्जी के नाम की घोषणा की है, तो वहीं 11 MIC के नामों का भी ऐलान चैताली तिवारी ने किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है, बिल्कुल ये सोचने की बात है, आप सोचिए। खैर, हमारे संवाददाता ने इस संदर्भ में मेयर विधान उपाध्याय से बात की, तो उन्होंने भी तंज का जवाब तंज अंदाज में ही देते हुए कहा कि दूसरों के बारे में सोचने वाले खुद अपने बारे में सोचिए कि उन्हें जाना किस तरफ है। वहीं हमारे संवाददाता चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी से भी बात की और उनसे पूछा कि बीजेपी की तरफ से जो प्रस्तावित नामों के ऐलान किए गए हैं, इसको लेकर उनके क्या विचार है। तो उन्होंने भी साफ शब्दों में कहा कि उनकी तो आदत है कानून के खिलाफ चलने की। अब मुझे ये नहीं पता कि आसनसोल से रांची के लिए ट्रेन चलती है या नहीं, अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो हम लोगों को कहें, हम इंतजाम कर देंगे। आखिर क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। ডেপুটি মেয়রের নাম তো আমাদের দাদা বললেনই, উজ্জ্বল দা খুব ভালো মানুষ, উজ্জ্বল চ্যাটার্জি, উনি একটা এক্সপিরিয়েন্স মানুষ, এক্স চেয়ারম্যান ছিলেন, এক্স MLA, তো উনি আমার মনে হয় খুব ভালোভাবে কাজকর্ম করে উঠতে পারবেন। MMIC যে আছেন ওনার মধ্যে তো অভিজিৎ ঘটক দা খুবই ভালো কাজকর্ম করেন, ওনার দরকার আছে ওনাদের এরকম দ্বন্দ্ব থেকে ওনারা একটু শান্তি পাবেন, কেননা এত ওনাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে, তো কাকে করবেন কাকে না, তো সেজন্য ওনার নামটাও প্রস্তাব রাখা হলো। 2 নম্বরে আমরা রেখেছি ডক্টর অমিতাভ বাসু, উনি একদম ইন্টেলিজেন্ট, খুব ভালো মানুষ, উনি ওনার হওয়া দরকার আছে। 3 নম্বরে ডক্টর দেবাশিস সরকার, উনিও খুব ভালো মানুষ। তারপর 4 নম্বরে আছেন অশোক রুদ্রদা, ওনার নাম রাখা যেতে পারে। আর 5 নম্বরে আছেন আপনার মানুষ দাসদা। 6 নম্বরে রূপেশ যাদব দা। 7 নম্বরে আছেন আব্দুল হাসদা, হ্যাঁ হাউস, আচ্ছা। তারপর 8 নম্বরে আছে সঞ্জয় নুনিয়া ভাই। আর 9 নম্বরে আছেন ভোলা হেলা, আচ্ছা। 10 নম্বরে আছেন মিনা কুমারী হাসদা, হ্যাঁ একজন লেডিস। আর 11 নম্বরে তো খুব মানে ওনাদের খুব ভালো মানুষ, যিনি বলতে পারেন খুব ভালো কাজকর্ম করবেন মানুষের জন্য, এটা আশা রাখি, ইন্দ্রাণী চ্যাটার্জি মিশ্র। তারপরেও যদি ওনাদের দ্বন্দ্ব না শেষ হয়ে থাকে, তো তারপর যদি আপনারা বলেন যে ওনাদেরকে আরো কিছু নাম দিতে হবে, আমরা সেই নামগুলো তখন ঘোষণা করব, যোগাযোগ করব। কিন্তু মানুষের হ্যাঁ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুক, আমরা নামগুলো ঘোষণা করে দেবো, কেননা ওনারা তো পারছেন না। হ্যাঁ, তো এইভাবে তো MIC-তে আসলে ওনাদের হবে না, এইজন্য আমরা সবাই ঠিক করলাম, ঠিক আছে 11টায় রুদ্র। दीदी घोषित डिप्टी में वसीमुल हक का आपका लिस्ट में नाम नहीं है क्या उनका? না, এটা তো আমরা অ্যাকচুয়ালি আমরা এটা সাজেস্ট করছি, এবং ওনারা তো অলরেডি নাম ঘোষণা করে রেখেছেন। 2টো ডেপুটি মেয়রের মধ্যে তো ওয়াসিমুল হকদার নাম আছেই, হ্যাঁ অভিজিৎ ঘটক মহাশয়ের নাম রয়েছেন। তো ওনাদের এই যে দ্বন্দ্ব চলছে 2জন ডেপুটি মেয়র নিয়ে, সেটাও ওনাদের একটু আমার মনে হয় রাস্তাটা ক্লিয়ার পাবেন ওনারা। হ্যাঁ, তো এতগুলো MIC-র নাম আমরা দিলাম, এরপরেও তো লড়াই রয়েছে, কারণ বাকি তাদেরকে শান্ত করবেন কি করে। হ্যাঁ, তো মানুষের পরিষেবা নিয়ে তো ওনাদের চিন্তা ভাবনাটা নেই না, এখন মানুষের পরিষেবা এখন ওনারা দেওয়ার ইচ্ছাটা ওনাদের মধ্যে নেই। এখন MIC-টার মধ্যে কার মাথাকে ঠান্ডা রাখা যায় সেই সবের ব্যাপারে রয়েছে। তো সেইটা যদি আমরা একটু ওনাদেরকে হেল্প করে দিতে পারি, তাহলে আমার মনে হয় আসানসোলের মানুষের জন্য কাজকর্মটা করাটা সুবিধা হয়ে যাবে। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चूँकि 3.5 महीना होने के बावजूद भी TMC की तरफ से अभी तक MIC बोरो चेयरमैन का नाम का ऐलान नहीं हुआ है, तो उन लोग एक प्रस्तावित नाम का ऐलान का घोषित किए हैं, क्या कहिएगा इस सिलसिले में? देखिए, उन लोग का तो आदत है ऐसे बगैर कानूनी से चलने के लिए, लेकिन हमको अभी पता नहीं है कि आसनसोल से रांची वाला ट्रेन चलता है कि नहीं। अगर उन लोग को टिकट नहीं मिलता है तो हम लोग को बोलेगा, ऐसे अभी हम लोगों को MP हम लोगों को है, MLA हम लोगों को है, हम लोग टिकट उन लोगों को बोल के कंफर्म कर दूंगा, वेटिंग लिस्ट वाला टिकट। ব্যঙ্গ করে আর ঠিক আছে, প্রথমেরা নিজের পার্টিটাকে ধরে রাখার চেষ্টা করবে,
তো যারাই করছে তারা কবে এই পার্টিতে আসবে লাইন দিয়ে বসে আছে। আগে ওরা নিজেরা স্ট্যান্ডিং যে ওরা কোথায় থাকবে, আমাদের দরজা খুলে দিলে এক্ষুনি এসে ঢুকে যাবে ওর মধ্যে। তা আগে নিজেকে দেখবে, তারপর অন্যদের দেখবে। তো দরজাটা খোলাই আছে, আমারও দরজা খোলা আছে, ঢুকে যেতে পারে এখন। কান্নাকাটি বায়না করলে তো নিশ্চয়ই চিন্তা ভাবনা করার আছে। আগে নিজেরা ঠিক থাকুক, অন্যদের কথা ভাবতে না। আজকে আমি যদি আমার তৃণমূল কংগ্রেস, আমি আমার নিজের পার্টিকে ভাববো, আমি অন্য পার্টি নিয়ে ভাবি না। आज चीना कोड़ी कोलियरी सेफ कमेटी की तरफ से 14 सूत्री मांगों को लेकर एक मीटिंग हुई, जहां उन्होंने अपनी मांगों को रखा। इसमें उन्होंने वर्कर के सेफ्टी की मांग की व उनके प्रमोशन के बात किए। साथ ही अन्य दिगर मांगों को लेकर आज उन्होंने चीना कोड़ी माइन 3 के मैनेजर को एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें उन्होंने अपने 14 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग की है। हमारे जितने भी नेतागण बैठे हैं उन्होंने संक्षेप में बताया। मैंने टाइम बहुत कम दिया था हम लोग को, मगर जब हम लोग से टाइम लेता तो हम लोग को टाइम लेना पड़ेगा। साथ ही आज का जो मीटिंग है, ये मीटिंग 14 सूत्री मांग को लेकर हम लोग ने आज ये 14 सूत्री मांगे बनाई है। कुछ का नेताओं ने विवरण दिया आप लोग को, मैं भी कुछ संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं। ये मीटिंग सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन के लिए रखी गई है। ये मीटिंग वर्करों का जो प्रमोशन नहीं होता है, वर्करों को जो अत्याचार हो रहा है, वर्करों का जो पीएससी में नाम गड़बड़ा रहा, उसके विरोध में मीटिंग रखी गई। साथी मधुर साथियों, आज यहाँ टीएमसी के काउंसिलर होल्डर आए थे, उनको उनकी मीटिंग थी, चले गए, उनका हम लोग धन्यवाद करते हैं। साथ ही मैं कभी जमुरिया के श्याम मेटेलिक फैक्ट्री ने जमुरिया बोरो एक कार्यालय में एक कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक अभिनव पहल की है। जमुरिया बोरो एक दफ्तर में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से लेस मोबाइल वैन जमुरिया के लोगों को समर्पित किया गया है। इस अवसर पर विधायक हरेराम सिंह ने कहा कि 30 से ज्यादा बड़ी और छोटी मिलें हैं, लेकिन क्षेत्र के लोगों और क्षेत्र के विकास के लिए एकमात्र श्याम धातु कारखाने ने अहम भूमिका निभाई है। वहीं अभिजीत घटक ने कहा कि क्षेत्र के विकास में इस कारखाने की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने इस दौरान स्थानीय बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर भर्ती करने की सिफारिश की है। পাশে আছে, যেটা আমাদের খুব দরকার। তার জন্য শুধু আপনাকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই। আমরা বরণ করে নিচ্ছি জামুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের মাননীয় যে কোনো উদ্যোগের ক্ষেত্রে উদ্যোগ জামুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্র পশ্চিম বর্ধমান জেলা, এবং আমরা খুব আনন্দিত যে আমাদের যে ফাউন্ডেশন আছে, আমরা সত্যি কৃতজ্ঞ তার উপস্থিতিতে। সম্মানীয় সভ্যে পরবর্তীতে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই। আমাদের এমন একটি সামাজিক উদ্যোগে আপনি কিছুটা আমাদের মধ্যে দিয়েছেন, ধন্যবাদ স্যার আপনাকে। স্যারের কথা অনুযায়ী হোক, আমরা এই মুহূর্তে অসংখ্য অভিনন্দন। থ্যাংক ইউ স্যার। আমি গ্রুপের তরফ থেকে আপনাকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি। মাননীয় মহানগরী গ্রুপের তরফ থেকে আপনাকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই। আমি আমাদের যে স্মারক সম্মান, সেই স্মারক সম্মানটি তুলে দিলেন মাননীয় মহানগরী আসাম। থ্যাংক ইউ। আসে এক হয়ে গেছে সব কথা ব্যবধান,
যেখানে বেশি সম্মানীয় ডিরেক্টর সুনীল চক্রবর্তী এবং একই সঙ্গে সম্মানীয় বিডিও সাহেব, মাননীয় মহানগরী সকলে মিলে সবুজ পতাকা দেখিয়ে তাদের যে উদ্যোগ সামনে জামুরিয়া এলাকায় আজকে আমি চাইবো সকলে মিলে একটু জোরে করতালি দেবেন আজকের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটির জন্য। এই এলাকার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে আজকের এই দিনটি লেখা থাকবে, পৌঁছে দিতে পারবো। উপস্থিত ঘটক জামুরিয়া বিধানসভার বিধায়ক শ্রী হরেরাম সিং আজকের অনুষ্ঠানে জ্যাম মেটালিক্স ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে আমরা অভিনন্দন। তো সব জায়গা থেকে সবাই থাকবে, যাতে লোকাল হয় সেটার ব্যবস্থা আমরা নিশ্চিতভাবে করব। তাই স্যাম মেটালিক্সকে আমার অনেক অনেক ধন্যবাদ রইল। আগামী দিনে নিশ্চিত হবে, কারণ আমাদের জামুরিয়া পুরাপুরি একদম গ্রামাঞ্চল বটে। এখানে গ্রাম সবগুলোই গ্রামের মানুষ কঠিন কষ্টে আছে, কোনো রকমে হাসি মুখে চালান দিচ্ছে, কিন্তু এটা বেশি দিন খুব মুশকিল আছে হাসি মুক্ত রাখার, কারণ আমাদেরকেও খেতে হবে, আমাদেরকেও সব কিছু করতে হবে। তাই আমরা সবসময় রয়েছি, আমরা আছি। গ্রামের ছিলা গ্রামের কথাটা খুব ভালো করে বুঝবো যে কী আছে আর কি নাই। তাই আমরা রয়েছি, সাথে থেকেও স্যাম মেটালিক্স পাবলিকের সাথে আছে এবং আগামী দিনে অনেক জামুরিয়ার উন্নয়নের হাত বাড়াবে। এবং আমরা আসানসোল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে আমাদেরকে যেখানে দরকার পড়বে, আসানসোল কর্পোরেশনের যতটুকু এলাকা আছে তাতে আমরা কাজ করতে পারবো। তার বাইরেও আমরা যেহেতু সবাই পুরো জেলাতেই আমরা নেতৃত্ব দিচ্ছি, কাজ করছি, তাই আমরা পুরো জেলাতে সব জায়গাতে কাজ করতে পারবো। তাই সকলকে ধন্যবাদ রইল, সকলে সুস্থ থাকুন। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर, डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अपकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, जीटी रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। लेडीज वेयर की एक्सक्लूसिव शोरूम ताइबा, अ हाउस ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर। महिलाओं की पसंदीदा शोरूम ताइबा, नए डिजाइन्स के कलेक्शंस, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से कम कीमतों पर। एन एक्सक्लूसिव कलेक्शंस ऑफ सूट पीस, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, गरारा और भी बहुत कुछ। एक रेडीमेड ड्रेसों का समाहार, सब एक से बढ़कर एक डिजाइन्स में। तो फिर हर त्योहार में छा जाए ताइबा के कलेक्शंस अपनाए। ताइबा, अ हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। हमारा पता है सोस्टी नगर, स्माइल होम्योपैथिक कॉलेज रोड, नियर सिल्वर गार्डन मैरिज हॉल, आसनसोल। मोबाइल नंबर 7908659117।
क्या आप एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी और डब्ल्यूबीसीएस की कोचिंग करना चाहते हैं? तो आपकी समस्या के समाधान के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, जहां आपको मिलेंगे दिल्ली और पटना के बेस्ट टीचर्स। यहां आप 2 फ्री डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ध्यान रहे, हमारे यहाँ एडमिशन शुरू हो चुके हैं, तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, सूर्यसेन पार्क, कुमारपुर, ऑपोजिट मनोज सिनेमा हॉल, जीटी रोड वेस्ट, आसनसोल। एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को कई तरह की फैसिलिटीज दी जाती है, जैसे एसी रूम्स, वीडियो क्लासेस, टाइपिंग फैसिलिटी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स। तो जल्दी से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नोट करें 8207297827। तंदूर वाले अब बर्नपुर में भी चिकन की एक से बढ़कर एक बेस्ट आइटम्स, वो भी चीपेस्ट प्राइस पर। कंप्लीट हाइजीन विद एक्सीलेंस ऑन एवरी लेवल। चिकन लवर्स, तो देर किस बात की, अब हो जाए तैयार, क्योंकि हम आपको मिलेंगे शवर्मा, चिकन कबाब, चिकन बर्गर, फ्राइड चिकन, चिकन पिज्जा, चिकन सैंडविचेस, चिकन इन ग्रेवी एंड रुमाली रोटी के कई वैरायटीज। हमारा पता है बर्नपुर, रहमत नगर, अपोजिट ईदगाह। जोमैटो एवं स्विगी पर हम अवेलेबल है और दिए गए फोन नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके भी आप ऑनलाइन ऑर्डर बुकिंग कर सकते हैं। तंदूर वाले के फेमस चिकन आइटम्स फ्रेंचाइजी के साथ साथ अब आपके घर पर भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर नजर खबर पर। आज आसनसोल के डुरांड हॉल में गरीब किसान सम्मेलन के नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विधायक अजय पोद्दार, पूर्व नगर निगम मेयर जितेंद्र तिवारी व रेलवे के दिगर अधिकारी उपस्थित थे। वहीं इस अवसर पर अजय पोद्दार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 8 साल से सुशासन में गरीब कल्याण योजना के तहत वंचित पीड़ित तक योजनाओं को पहुंचाने का जो काम किया गया है और इसकी जानकारी देने व बाकी लोगों तक पहुंच सके, इसको लेकर आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज बहुत ही ऐतिहासिक पल पर लेने से इस कार्यक्रम में देवभूमि हिमाचल प्रदेश के शिमला के ऐतिहासिक में आपने नेतृत्व में भारत में সংখ্যা আমি যদি খাদ্য যেটা মাথা পিছু 5 কেজি করে পাচ্ছেন সেটা ধরি, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা প্রায় 75 থেকে 80 এই ধরনের যেটা আমাদের গীতাতে বলা আছে, বহুজন সুখায় জেলাগুলি থেকে অনেক লাভার্থীরা আবাস যোজনার গ্রামীণ এবং আরবান যারা পেয়েছেন অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। আমাদের প্রেস মিডিয়ার বন্ধুরা আছেন, শুনতে কষ্ট হলেও এটা ঘটনা ভারত পশ্চিমবঙ্গে এসে বদলে দেওয়া হয়। যেমন भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के 8 साल के सुशासन में गरीब कल्याण योजनाओं के तहत भारत के आखिरी बिंदु के जो वंचित, शोषित, पीड़ित हैं उन तक योजनाओं को पहुंचाने के लिए जो काम किया गया है उसकी जानकारी देना और हम बाकी लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन है। 8 साल में वो रेल का क्षेत्र हो, आप खुद देख सकते हैं स्टेशनों पे सफाई और आजकल स्टेशन एरोड्रम की तरह दिखाई पड़ने लगे हैं। आप आसनसोल डीआरएम क्षेत्र के प्रत्येक स्टेशन को देख सकते हैं। उसी प्रकार वो डिफेंस का सेक्टर रहा हो या गरीबों की योजनाओं का सेक्टर रहा हो या महिलाओं को सशक्तिकरण के योजनाओं का सेक्टर रहा हो, हर घर को जल, हर घर को, हर लोगों को पक्का घर, हर घर में बिजली, हर घर में एक शौचालय, ये सारी जितनी योजनाएं हैं ये 2014 से लगातार चल रही हैं। इससे जो सशक्तिकरण हुआ है, आज घर की महिलाएं को जो बाहर जाना पड़ता था उनसे वो आज सुरक्षित हैं। उनके घर हर घर को जल देने की जो योजना है अभी तक आसनसोल में पूर्ण नहीं हुई है, उसके लिए हम लोग चाहेंगे कि आसनसोल कॉरपोरेशन में भी ये पूर्ण हो।
आज स्पेशली क्या कार्यक्रम है? आज स्पेशली वही गरीब सशक्तिकरण के ऊपर ही पूरा कार्यक्रम है, जो देशव्यापी कार्यक्रम है। দেখুন সারা দেশেই আজ আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি নেতৃত্বে যে সরকার গঠন হয়েছিল এনডিএ সরকার, তার 8 বছর পূর্তি হলো। তার সে উপলক্ষে আজ গরিব কিষাণ সম্মেলন সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন অঞ্চলে হচ্ছে। আসানসোলেও ওই সম্মেলনেরই আয়োজন করেছে ইস্টার্ন রেলওয়ের আমাদের আসানসোল ডিভিশন, এবং সেখানে আমরা এই অনুষ্ঠানে আজ অংশগ্রহণ করেছি। দেখুন বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারের যে বিভিন্ন প্রকল্প, সেটার সারা দেশের সমস্ত মানুষ, সমস্ত বেনিফিশিয়ারিরা পাচ্ছেন, কিন্তু বেশ কিছু এমন প্রকল্প আছে যেটা থেকে বাংলার মানুষ বঞ্চিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সে প্রকল্পগুলো বাংলায় ইমপ্লিমেন্ট হোক তার জন্য উদ্যোগ নিচ্ছে না। যেমন আপনারা জেনেছেন যে কৃষকদের জন্য যে পরিকল্পনা আছে, যে স্কিম আছে, সেটা বাংলার সমস্ত কৃষকদের নাম এখনও দিল্লিতে পাঠানো হয়নি। তার ফলে প্রচুর কৃষক এটা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। হেলথের ক্ষেত্রে যেটা আপনারা জানেন যে আয়ুষ্মান ভারত এখনও বেঙ্গলে ইমপ্লিমেন্ট হয়নি। তো আমরা অনুরোধ করব রাজ্য সরকারকে যে কেন্দ্রীয় সরকারের যে বিভিন্ন প্রকল্প, সে প্রকল্প তো আমাদের করের টাকায়, তো সেটা থেকে বাংলার মানুষকে বঞ্চিত যেন না করা হয়, আসানসোলের মানুষকে যেন বঞ্চিত না করা হয়। রাজ্য সরকার যেন রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে এসে এই সমস্ত প্রকল্প সুবিধা যেন বাংলার মানুষ পায়, সে ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করবে। আসানসোলের কৃষকরাও তো অবস্থায়, আমি তো বলছি যে সমস্ত জায়গায়, এবং এটাকে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে মোদিজি যেটা দিচ্ছেন এটাকে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রচার হয়ে যাবে, তারা ভোট পেয়ে যাবে, এইভাবে তো দেখলে হয় না। আলটিমেটলি ভোটের সময় সব দলই নিজের কথা বলবে, কিন্তু ভোট পেরিয়ে যাওয়ার পর তো মানুষকে বাঁচাতে হবে। মানুষের উন্নয়নের স্বার্থে রাজ্য সরকার, কেন্দ্র সরকারকে একসঙ্গে মিলে কাজ করতে হবে। দিল্লি সরকারের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে বাংলার মানুষকে বিড়ম্বনায় ফেলে দেওয়াটা আমার মনে হয় না ঠিক। कितना दिन वंचित होगा? ऐसे वो लोग वोट में छप्पा करके जीते हैं, जनसाधारण का कोई काम नहीं हो रहा है। इतना पानी का समस्या, इतना ड्रेनेज का समस्या, कोई काम नहीं हो रहा है। उसके बाद भी आज ये लोग का यही चल रहा है। ये लोग का आर्थिक परिस्थिति, ये लोग का हर एक घर में अच्छा होना चाहिए। उससे गरीब दुखी लोग, जितना हम लोग का आसनसोल का वासी लोग, ये लोग का कुछ भी हो जाए, ये लोग का कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तक एमआईसी डिप्टी मेयर ये लोग शपथ नहीं करवा पाए, गठन नहीं करवा पाए। क्यों? 2 डिप्टी मेयर चाहिए, 3 डिप्टी मेयर चाहिए। हम लोग तो नहीं बोले हैं ये बात, हम लोग विरोधी कोई बोले हैं? नहीं बोले हैं। कोई जनसाधारण बोले हैं, आसनसोल वासी बोले हैं कि हम लोग को 2 डिप्टी मेयर चाहिए? नहीं ना। इन लोग को चाहिए अपना आर्थिक परिस्थिति ठीक करने के लिए ऐसे करके हम लोग झुला के रखे और साधारण पब्लिक को ऐसे परेशानी में डाले। डेली आदमी आए और घूम के चले जाए। सरकस पार्टी है, ये सरकस पार्टी है। हम लोग जोकर है, हम लोग आदमी का वोट से जीते हैं, हम लोग आदमी का वोट से जीते हैं। वो लोग छप्पा करके जीते हैं। ये लोग मीटिंग करने के लिए नहीं आते हैं, ये लोग आदमी लोग को तकलीफ देने के लिए आते हैं। तो अभी क्या बोर्ड मीटिंग चल रही है? ये बोर्ड मीटिंग क्या है? सर्कस हो रहा है, सर्कस हो रहा है। तो सर्कस बोर्ड मीटिंग इसमें इन लोग का जो अपना जो छप्पा करके जो वोट में जीते हैं ना, वैसे जोकर लोग सब बैठे हैं और बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं। जैसे बोर्ड मीटिंग तो नहीं हो रहा, नहीं, ये तो बोर्ड मीटिंग नहीं हो रहा, सर्कस चल रहा है। ये बोर्ड मीटिंग कौन ले रहे हैं? चेयरमैन साहब कर रहे हैं। कैसे कर सकते हैं चेयरमैन साहब बोर्ड मीटिंग? हम लोग को बजट करने का बात था, बजट मीटिंग का बात था 11:30 बजे, 11:55 हो गया, तब तक मेयर साहब नहीं आए। चेयरमैन साहब बोल रहे हैं कि हम बजट मीटिंग, हाँ वो आए 11:55 में। चेयरमैन साहब आए 11:55 में। मतलब इन लोग को जब नींद खुलेगा, अगर रात 2 बजे इन लोग को नींद खुलेगा तब भी हो सकता है मीटिंग। तो क्या ऐसे करके चल सकता है? क्या भाजपा के काउंसलर बोर्ड का बहिष्कार कर रहे हैं? एकदम हम लोग बोर्ड का पहला बात है कि पहला एक संशोधन करना चाहती हूँ। बोर्ड तो है ही नहीं, बोर्ड तो है ही नहीं, तो फिर मीटिंग कैसे? मीटिंग किस चीज का? बोर्ड जब है नहीं तो मीटिंग किस चीज का? फिर भी ये लोग बुला रहे हैं मीटिंग। आज 3 महीना होने के बावजूद और चालाकी करके पहले बोले के आज इन लोग का एक बात है, आज इन लोग का क्षमता है, ये लोग छप्पा करके इतना सारा अपना काउंसिलर बनाए हैं। छप्पा काउंसिलर बनाए हैं। अभी ये लोग कुछ भी गलत काम कर सकते हैं, सब कुछ मानना पड़ेगा। हम लोग का अधिकार नहीं है। हम लोग तो आदमी का वोट से जीते हैं, आदमी हम लोग को प्यार से वोट से जिताए हैं, तो आदमी का काम करना। 3 মাস হয়ে গেল, এখনো পর্যন্ত ওনারা ডেপুটি মেয়র যে তৈরি করতে পারলো না। তো মানুষ কি এইভাবে বলুন না, রানীগঞ্জ থেকে এবার কোথায় আছে রানীগঞ্জ, কোথায় আছে কুলটি, কোথায় আছে আপনার জামুরিয়া,
কোথায় আপনার উত্তর, কোথায় দক্ষিণ, তাহলে একটা যদি দক্ষিণের মানুষের সমস্যা হবে উনি কোথায় যাবেন? খালি এখানে আসবেন কর্পোরেশনে? তাহলে বড়গুলো কি জন্য করা হয়েছে? কেন ওনারা ভাগ করে দিতে পারছেন না? এত সময় ওনাদের কেন লাগছে? কিসের জন্য সময় লাগছে? আর দুটো ডেপুটি মেয়র তো আমরা বলিনি, তাহলে এত সময় কেন লাগার কথা? রাজ্যপাল কাগজ পাস করছে না, তাই জন্য হচ্ছে না। আচ্ছা, আপনারা বলুন না কোন জায়গায় আপনারা দেখেছেন যে দুটো ডেপুটি মেয়র রয়েছে? ওনারা রাজ্যপালের অজুহাত দেখাচ্ছেন। রাজ্যপালের আর কোনো কাজ নেই? রাজ্যপাল তো মানুষের জনসাধারণের কাজ করবেন। রাজ্যপাল কি ওনাদের যা মর্জি, ওনারা মনের মতো করে যা বলবেন কাজ করবে? তা তো বলবেন না। और अभी की खबर बस यहीं तक। इसी तरह की खबर के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।